Question is, let there be the three set A, B and C of the complex number as defined below. A such that A equal to Z such that imaginary number is greater than 1. B set B Z such that Z minus 2 minus iota is equals to 3, and set 3 Z such that real number 1 minus iota multiple of Z is equals to root 2. The number of the element in the set A intersection B intersection C is. What we have to find, we are given a three set A, B and C, and we need to find the intersections of set A, set B and set C, because all these set are the complex numbers. So how we write a complex number? Complex number Z is equals to X plus IY. According to the set 1, imaginary number is greater than 1. This is a real number, this is an imaginary part. So we can say that y is greater than 1. In such condition, what will happen? The value of y is equals to 1 or parallel to x axis. Okay. Now for the set B, the given condition is z minus 2 minus iota is equals to 3. By seeing the equations, we can analyze that this is equations of the circle. This is a circle equations with the coordinate 2 and 1. So we can write it x minus 2 ka square plus y minus 1 ka square is equals to 3. What is the 3 here? 3 is the radius of the circle. Now the third condition is real number 1 minus z multiple of 1 minus iota. 1 minus iota multiple of z is equals to root 2. Now here puts the value of z, 1 minus iota multiply by x plus iy is equals to root 2. Then what we will have to do? After that we need to solve these equations. How we can solve? By multiplications. Okay, how we can solve? What property we will apply? We will apply here multiplications. When we multiply the equations, what we get? We get x plus iota y minus iota x plus minus minus, but the value of I square is equals to minus 1. So here we get plus y is equals to root 2, or we can write it x plus y is equals to root 2. Now from these three equations, I draw a diagram here. This is y-axis, this is our x-axis. First condition is y is greater than or equals to 1. Suppose this is a point 1. This is parallel to, this is for the equation first. Y is greater than equals to 1. Now for the second one, we need to draw a circle whose coordinate is 1 and 2. I draw a circle, coordinate is 1 and 2 and radius is 3. Now from there one line is drawn, that is x plus y is root 2. So among all these, what is the common point is 1. So we can say that A intersection B intersection C is equals to 1. This is our answer. Thank you. हमारा क्वेश्चन है लेट S इज इक्वल्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 वेयर S1 इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ Z इज लेस देन 4. S2 is a set of complex numbers such that image of Z minus 1 plus root of 3 iota upon 1 minus root 3 iota is positive, and S3 is a set of complex number such that real part of Z is less than 0. Let Z be any point in A intersection B intersection C. The magnitude of Z plus 1 minus iota का whole square plus magnitude of Z minus 5 minus iota का whole square lies between. यानी हमें जो वे वैल्यू गिवन है, हमें बताना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो किस बीच में लाई करती है, और हमें 4 ऑप्शन गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट. हमें गिवन है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ Z प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर. इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. इज इक्वल्स टू Z लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस आयोटा y
माइनस 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट एक तरफ कर दिए प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर दिए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 5 वही रियल पार्ट अलग किए और इमेजिनरी पार्ट अलग किए y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसका मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 28 because x square plus y square minus 2y minus 4x is equals to 4। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे 2 into 4 plus 28 is equals to 36 and according to option third it is lying between 35 and 39, then option 3 is our final answer. Thank you. The question given is for any two complex numbers z1, z2 and any real numbers a and b. Mod of a z1 minus b z2 whole square plus b mod of b z1 plus a z2 whole square is equal to. अब mod of a z1 minus b z2 whole square plus mod of b z1 plus a z2 whole square, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a z1 minus b z2 into a z1 minus b z2 whole mod whole bar plus b z1 plus a z2 into b z1 plus a z2 bar। तो ये हो जाएगा a z1 minus b z2 into a z1 bar minus b z2 bar plus b z1 plus a z2 into b z1 bar plus a z2 bar। तो ये हो जाएगा a square mod of z1 square minus ab z1 z2 bar minus ab z1 bar z2 plus b square z2 mod of z2 square plus b square mod of z1 square plus ab z1 z2 bar plus ab z1 bar z2 plus a square z2 square। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन हमें मिलेगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर को कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि इफ द एक्सप्रेशन, ये हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इज रियल देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज ओके। तो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर ये रियल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होगा ओके। तो लेट्स से कि हम ये जो एक्सप्रेशन है उसे p कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है, p इक्वल्स टू साइन x/2 प्लस cos x/2 प्लस आयटा 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयटा साइन x/2। अब हमें पता है इसकी क्या, डिनोमिनेटर में एक इमेजिनरी नंबर है, तो डिनोमिनेटर को रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस 2 आयटा साइन x/2। इसे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। तो जो हमारा p है वो कितना आ जाएगा,
हमारा p आ जाएगा साइन x बाई टू प्लस कोस x बाई टू। हम एक बार क्या रियल पार्ट को देख लेते हैं फिर, और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में लिख देंगे, अलग लिख देंगे। ओके, तो रियल पार्ट कितना हो रहेगा साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू इंटू वन। ओके, और क्या होगा रियल पार्ट? रियल पार्ट होगा आयटा टेन एक्स इंटू माइनस टू आयटा साइन एक्स बाई टू। ओके, तो ये कितना हो रहेगा प्लस ऑफ टू टेन एक्स साइन एक्स बाई टू। अब हमारा इमेजिनरी पार्ट कितना हो रहेगा? वो हो रहेगा माइनस टू आयटा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू आयटा साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू एंड प्लस आयटा टेन एक्स। ओके, और हमारा डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा? हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा वन प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, अब हमें क्या दे रखा है कि p जो है वो रियल है, तो इफ p इज रियल then imaginary part of p is 0. ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ p वो 0 के इक्वल करना है, तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, रियल है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तो हमेशा रियल ही है, तो 0 किस क्या होगा, और डिनोमिनेटर है वो हमारा कभी 0 हो भी नहीं सकता है। तो हमारा क्या जो सिर्फ न्यूमरेटर होगा इमेजिनरी पार्ट का वही 0 के इक्वल होगा। ओके, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारे पास? माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स। ओके, अब हमें पता ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज दिख रही है क्या? हमें दिख रहा है कि यहाँ पे टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू है, तो ये टू साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला दिख गया, तो वो किसके इक्वल होता है? साइन टू थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? साइन एक्स लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर 1 होता है, ओके, तो ये कितना हो जाता है? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? कोस एक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या 1 ऐड कर देते हैं और 1 क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये माइनस 1 भी ऐड कर दिया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस 1 और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो गया हमारे पास? प्लस कोस एक्स। ओके, और ये जो टेन एक्स है इसे क्या लिख सकते हैं हम? साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। ओके, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं हम कोस एक्स माइनस 1, और यहाँ से क्या करते हैं हम? यहाँ से हम साइन एक्स बाई कोस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस इधर कोस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना कोस एक्स हो गया। ओके, 1 माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कोस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स बाई कोस एक्स को क्या लिख देंगे? टेन एक्स, और यहाँ से कितना 1 माइनस कोस एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? या तो जो कोस एक्स है हमारा वो 1 के इक्वल हो, या फिर जो टेन एक्स है वो 1 के इक्वल हो। ओके, तो कोस एक्स 1 के इक्वल कब होता है? जब x क्या बिलोंग करता है? x क्या होता है हमारा? n पाई। ओके, और ये n जो हो सकता है वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जब भी x क्या कोस एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? 2n पाई पर होती है, सॉरी, तो 2n पाई, तो जब भी x की वैल्यू 2n पाई होगी तब कोस एक्स 1 होगा। ओके, तो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। या फिर 10x 1 कब कब होता है? जब x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 हो। ओके, तो तब 10x की वैल्यू 1 होगी और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा। और इसमें
जो n है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर, और यहाँ पे भी हमारा n है वो किससे बिलोंग करता है, कोई भी इंटीजर। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि x क्या हो सकता है, तो x हो सकता है या तो 2n पाई हो या फिर x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 हो, तब ये जो इक्वेशन है ये रियल होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा रियल होगा। ओके,